लास्ट क्लास हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में काफी कुछ फंडामेंटल्स देखे थे। थोड़ा सारा स्लाइड को जल्दी जल्दी रिकैप कर लेंगे तो आपको कंफर्ट लगेगा। लास्ट क्लास हम लोग ये सारा चीज देखे थे। रिफ्रैक्शन में velocity of light in free space is 3 × 10⁸ in any other medium it is less than c. The ratio c by v is called refractive index. A medium is said to be a denser medium if velocity of light in that medium is less. It is said to be a rarer medium. Velocity of light in that medium is more. For a denser medium, mu is more. Rarer medium, mu is less. When light moves from one medium to other medium, the frequency of light does not change. However, the velocity and wavelength change. So that way you find if there are two mediums with refractive indices mu1 and mu2 and wavelength of light in the two medium are lambda1 and lambda2, then they satisfy the relation mu1 lambda1 is equal to mu2 lambda2. Okay, this also we have seen. Then we have seen what is refraction. When light is obliquely incident at the interface between two different medium, the bending of light is called refraction. हम लोग देखें नॉर्मल इंसिडेंट होने से रिफ्रैक्शन नहीं होता है। Refraction, when light moves from one medium to other medium, refraction is not a compulsory phenomenon, but reflection is a compulsory phenomenon जो कि हरदम होता है। हर केस में रिफ्लेक्शन होता है when light changes its medium। फिर हम लोग देखे थे कि फेरमाट्स प्रिंसिपल, when light moves from one point to other point by reflection, refraction or any phenomenon it reaches, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने के लिए जिस रास्ते में जाने से सबसे कम समय लगेगा उस रास्ते में हो जाता है। It follows the path of least time. Also we have seen principle of reversibility. When light undergoing several reflection and refractions finally gets normal incident on a reflecting surface, the reflected ray exactly retraces the same path and reaches the source. Okay, then we have seen laws of refraction. Laws of refraction में हम देखे the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence lie in a common plane. The incident angle, the refractive angle bear a constant ratio depending upon the refractive indices of the medium, and also we have seen mu1 sin I is equal to mu2 sin r. ये दोनों पार्ट को अगर हम जोड़ेंगे एक सिंगल स्टेटमेंट में जोड़ेंगे वेक्टर फॉर्म में तो कहेंगे mu1 into ai cap unit vector along incident ray, ai cap cross an cap is equal to mu2 into ar cap cross an cap. ठीक है। Also we have seen as it moves from a rarer medium to a denser medium, the ray deviates towards the normal, and when it moves from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. Then we have seen what is a slab. When light passes through a transparent medium, if the incident surface and the emergent surface are parallel to each other, you call it a slab. This is a slab. Though it is looking like a slab, it is not a slab. This is also a slab. Then facts related to refraction we have seen. तो पहला चीज हम देखे कि when light passes through a slab, the incident ray and the refracted ray are parallel to each other. Also we have seen the light suffers a lateral deviation. And what is that lateral deviation? The lateral deviation is given by t sec r into sin I minus r. So on what factors the lateral deviation of a ray passing through a slab depends upon thickness of the slab, incident angle, and we will not say r because r is decided by the refractive indices of the two mediums. So it depends upon the refractive indices of the two mediums, incident angle and thickness of the slab. Okay, इसके बाद आज हम लोग देखेंगे क्या बताओ, आज की क्लास यहाँ से शुरू करेंगे और हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट। लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट क्या है? थोड़ा स्टेटमेंट लिख देते हैं इसका। When an object in one medium is almost
normally viewed from another medium. When I say different medium, what I mean, there are different refractive indices. Another medium, the apparent depth of the object, is found to be different from the real depth. The phenomenon is called longitudinal shift. क्या है ये longitudinal shift? स्टेटमेंट के लिए तो मैं लिख दिया, लेकिन आपको समझना है, ठीक है? longitudinal shift जैसे पहले हम लोग क्या देखे थे, लेटरल शिफ्ट, रे लेटरली डिस्प्लेस हो रहा था, द रे परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ शिफ्ट होके इधर आ जा रहा था। नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट। क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मीडियम है, सपोज हम कहेंगे मीडियम का बाउंड्री है, ये μ1 है, ये μ2 है, अलग अलग मीडियम है, और सपोज इस मीडियम में कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट रखा, सपोज दिया गया है कि μ2 इज मोर देन μ1। दूसरा केस ले लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि μ2 इज लेस देन μ1, वो भी देख लिया जाएगा। सपोज ये एक बाउंड्री है बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम्स, से μ1 एंड μ2, एंड गिवन दैट μ2 इज लेस देन μ1, μ2 इज लेस देन μ1, ऐसे दिया हुआ। दिस इज द थिंग गिवन। अब ये ऑब्जेक्ट को आप दूसरे मीडियम से देख रहे हो विथ ऑलमोस्ट नॉर्मल व्यूइंग। नॉर्मल व्यूइंग मतलब सीधे इसके ऊपर से देख रहे हो, ऐसे नहीं कि साइड से देख रहे हो। साइड से देखोगे अगर आप साइड से देखोगे आपको लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट भी दिखेगा, लेटरल शिफ्ट भी दिखेगा, दोनों दिखेगा। एक्सक्यूज मी। चलिए देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को आप अगर इस मीडियम से देख रहे हो क्या दिखेगा, जबकि μ2 इज मोर देन μ1। तो जो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा कब दिखेगा, ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ दोनों रे आपकी आंखों में पहुंचना चाहिए। और हम जानते हैं कि जैसे ये पेन को मैं देख रहा हूं, यहां से एक रे आके मेरा इस आंख में पहुंच रहा है, यहां से एक रे आके मेरा इस आंख में पहुंच रहा है। ये आपको सेंसेशन हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर है, ये आपको सेंसेशन हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर है। सो दिस इंसिडेंट रेज आर मर्जिंग एट दिस पॉइंट, तो ब्रेन मैप कर लेता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है ना। तो चलो देखते हैं हाउ द रेज आर रीचिंग योर आई। ऑलमोस्ट नॉर्मल व्यूइंग मतलब आप यहाँ पर से देख रहे हो। नॉर्मल व्यूइंग के लिए ये स्टेटमेंट को याद रखना। यहाँ पर आई वुड लाइक टू अंडरलाइन दैट पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर ऑलमोस्ट नॉर्मल व्यूइंग, नॉर्मली व्यूड, ये साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट दोनों दिखेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये नॉर्मल व्यू करेंगे तो काफी चीजें हमें असम्पशन में आ जाएगा, उसको देखना है। हाँ, तो क्या हुआ, यहाँ से कोई रे आया जिसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, तो गया आपकी आंखों में। दूसरा रे जो यहाँ से आया ऐसे, ठीक है, यहाँ से आया थोड़ा ऐसे, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये ऐसे, तो ऑब्वियसली ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। जैसे ये डेंसर मीडियम रेयर मीडियम में जाएगा, ये रे कैसे जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द रे विल गो लाइक दिस, द रे गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ से एक रे आया, यहाँ से एक रे आया, मान लो आपकी मुंह इतना बड़ा है, ये रे एक आंख में पहुंचा, ये रे एक आंख में पहुंचा, आपको क्या लगेगा, वेयर इज द ऑब्जेक्ट? इफ यू एक्सटेंड एंड यू सी द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी समवेयर हियर, यहाँ से जो रे आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा है, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, आपको हो गया, आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट ये है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये है, लग रहा है ये। तो जो अपरेंट डेप्थ था, एक्चुअली इतना डेप्थ था, अपरेंट डेप्थ लग रहा है कम। You find the apparent depth is appearing to be lesser than the real depth. See in this case, ये केस में यहाँ से कोई रे आया,
आपकी आंखों में गया, दूसरा रे यहाँ पे गया। थोड़ा ये फिगर को मैं छोटा करना चाहूंगा। ये मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ये है ऑब्जेक्ट। अब दूसरा रे जो यहाँ से गया वो गया कुछ ऐसे, सपोज ऐसे। अब नाउ इट इज गोइंग टू ए डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में क्या होता है? डेंसर मीडियम में इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे ऐसे जाने की बजाय, इधर जाने की बजाय थोड़ा इधर मुड़ जाएगा। यस, मुड़ गया ऐसे। नाउ सपोज दिस टू रेज आर रीचिंग योर आई। नाउ आपको क्या लगेगा? वेयर इज द ऑब्जेक्ट? आप देखोगे जहां पर ये दोनों रे मिल रहे हैं, ये रे आया इधर और ये जो रे आप देख रहे हो ये रे आ रहा है इधर। दे आर अपियरिंग टू मीट समवेयर हियर। तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है। व्हाट यू फाइंड? द अपरेंट डेप्थ इज अपियरिंग टू बी मोर देन द रियल डेप्थ। तो इस केस में क्या दिख रहा है? आप फिगर में अगर देखेंगे तो इसको हम कहेंगे अपरेंट डेप्थ। ये डेप्थ को कहेंगे अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ ये है रियल डेप्थ। हियर ये है आपका रियल डेप्थ, ये है अपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये। अब ये दोनों फिगर को मैं थोड़ा स्क्वीज करता हूं एंड व्हाट वी ऑब्जर्व उसको थोड़ा नोटिस करते हैं। ठीक है, क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा इसको नोटिस करते हैं। ठीक है, तो जो कंक्लूजन हमें यहाँ पे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन कहां पर? डेंसर मीडियम। ऑब्जर्वर कहां है? देखने वाला इन रेरर मीडियम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये आएगा, फॉर्मूला भी देख लेंगे ऑफ कोर्स। तो क्या दिख रहा है? अपरेंट डेप्थ इज लुकिंग टू बी लेस देन द रियल डेप्थ। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है देखो तो, ऑब्जेक्ट इन रेरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर देखने वाला कहां है? इन डेंसर मीडियम, है ना। तो क्या मिला? दी अपरेंट डेप्थ is looking to be more than the real depth में। ये सारे चीज हम लोग अभी इन कोर्स ऑफ टाइम अभी हम लोग इसको करेंगे। लेकिन बस एक क्वेश्चन आया, सपोज हम कहेंगे कि कोई मछली और देख रहा है बगल में कोई नदी के किनारे कोई, मान लो कि कोई फिशरमैन खड़ा है। फिशरमैन का हाइट मछली को ज्यादा लगेगा कि जितना एक्चुअल है वही लगेगा, उससे कम लगेगा? सोचना है। मछली कहां पे? हवा में तो नहीं है, पानी में है। If the fish is in water, then fish is observer. Observer in denser medium. अच्छा, और ऑब्जेक्ट किसको देख रहा है? फिशरमैन को। वो हवा में है, मतलब the observer is in the object is in rarer medium. तो ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वर हो गया मछली पानी में है, और जो ऑब्जेक्ट है वो है फिशरमैन जो कि एयर में। तो जब मछली देख रहा है, फिशरमैन का हाइट उसको ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम लगेगा कि हाइट ज्यादा है ना। तो द फिश विल फील द फिशरमैन इज वेरी टॉल, जबकि फिशरमैन को क्या लगेगा? अगर मछली मान लो 2 मीटर नीचे है पानी में, फिशरमैन को क्या लगेगा देख के? 2 मीटर नीचे है कि उससे कम नीचे है कि उससे ज्यादा नीचे है? उससे कम नीचे। उसको लगेगा कि 1 मीटर 1.5 मीटर नीचे है। ठीक है, ज्यादा नीचे नहीं। हाँ, वही चीज आपको समझ में आना चाहिए। फिर ये सारा का हम लोग अभी कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अपरेंट डेप्थ। कैलकुलेशन ऑफ अपरेंट डेप्थ। कितना होगा अपरेंट डेप्थ का कैलकुलेशन निकालेंगे। बट कंडीशन क्या हुआ? फॉर नॉर्मल व्यूइंग। चलिए करते हैं। नॉर्मल व्यूइंग के लिए हम कोई एक मीडियम लेते हैं। ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में भी हो सकता है, रेरर मीडियम में भी हो सकता है। सपोज ये μ1 है, ये μ2 है, और जैसे अभी हम फिगर किए थे, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ कोई रे मान लो सीधे जा रहा है, कैसे? इट इज गोइंग लाइक दिस।
This is one ray going from the observer to the from the object to the observer. ये कैसे जा रहा है, नहीं थोड़ा टेढ़ा करना है। ये गया एक रे, दूसरा रे चलो मानते हैं कि यहाँ से आया, वो आके ए से पहुंचा, पहुंचने के बाद सपोज हमें दिया गया है कि μ2 इज मोर देन μ1, तो फिर ये रे ए से डिफीट कर जाएगा। अगर ये दोनों रे किसके आंखों में जाके पहुंचेंगे तो उसको क्या लगेगा, ये कौन सा कैसे बताओ, इसमें μ2 इज मोर देन μ1 और μ2 इज लेस देन μ1, μ2 इज मोर देन μ1। अच्छा, तो ऐसा केस में क्या हुआ कि ये दोनों रे अगर उसकी आंखों में पहुंच रहे हैं तो उसको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर। ये हो गया कौन सा, द अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को चलो ओ कहते हैं, अपरेंट पोजीशन को ओ डैश कहते हैं। हमें अगर μ1 μ2 दिया हुआ है और रियल डेप्थ मालूम है, ये डेप्थ कितना है मालूम है, रियल डेप्थ हमें पता करना है, व्हाट विल बी द अपरेंट डेप्थ। थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, सपोज आई कॉल दिस पॉइंट इज ए, और ये जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है चलो इस पॉइंट को कहते हैं बी, और यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल इज दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो आप कहोगे कि ये नॉर्मल हो गया है। अब ये नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जो एंगल कर रहा है इस मीडियम में, कॉल इट आई, यहाँ पर जो एंगल हो रहा होगा क्या होगा, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये एंगल हो गया आर। ठीक है, चलिए फिगर को देखिए और बताइए व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट एंगल इज दिस। ये ऐसे गया, ऐसे चला गया, ये आ रहा है यहाँ पे, तो क्या लगेगा, ये आर है ना। और व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज आई। हाँ, समझ में आ रहा है। तो क्योंकि स्कूल में डेरिवेशंस आते हैं तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, इट विल टेक 1 minute more to write all these things. So let the object in denser medium is viewed from the rarer medium। अगर रेयर मीडियम से इसको देखते हैं तो क्या दिखेगा, ठीक है। The object appears to be the object O appears to be at O dash। ठीक है, O में जो ऑब्जेक्ट था वो लग रहा है कि अब ये O डैश में आ चुका है, और हमें निकालना है AO डैश जो कि अपरेंट डेप्थ है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन पे आते हैं। आप अगर देखोगे ABO ट्रायंगल में, इन ABO ट्रायंगल में ये जो ऑब्जेक्ट है O डैश में क्यों लग रहा है, समझ में आया ना। ये दोनों रे आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं तो आपको लग रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज हियर, है ना। अगर ये मीडियम का चेंज नहीं होता, ये दोनों रे आपकी आंखों में पहुंचते और लगता कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वो रियल डेप्थ है। सो इन ABO ट्रायंगल आप कहोगे AB बाय AO क्या है, AB बाय AO is nothing but just a minute, AB by AO in ABO triangle, AB by AO क्या हो रहा है देखो तो, it is coming out to be tan I। हाँ, ये समझ में आया, ठीक है। AO कितना, AO is nothing but the real depth, तो हम कहेंगे AB is real depth into tan I, दिया क्या, real depth। Let us go for the next।
अगर हम देखेंगे ए बी ओ डैश ट्रायंगल में क्या है, इन ए बी ओ डैश ट्रायंगल, अगर ए बी ओ डैश ट्रायंगल को देखेंगे तो ए बी बाई ए ओ डैश, ए बी बाई ए ओ डैश क्या हो जाएगा, tan r। हम कहेंगे ए बी बाई ए ओ डैश इज इक्वल टू tan r, है ना, कितना सिंपल है, ए बी बाई ए ओ डैश इज tan r। बट व्हाट इज ए ओ डैश, ए ओ डैश इज द अपरेंट डेप्थ, हम कहेंगे ए ओ डैश इज डी ए और अपरेंट डेप्थ। तो फिर क्या मिल गया, मिल गया ये ए बी इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ इनटू tan r, ठीक है। नाउ इस दोनों इक्वेशन को अगर देखेंगे, पहला इक्वेशन में मिला ए बी इक्वल टू डी आर tan i, दूसरा इक्वेशन में मिला ए बी इक्वल टू डी ए tan r, 10 10 10 डी ए tan r इज इक्वल टू डी आर tan i। हाँ सर ये समझ में आया, अच्छा चलिए हम लिख सकते हैं अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू tan i बाय tan r, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। अभी तक हम लोग नॉर्मल व्यूइंग वाले चीज को यूज नहीं किए हैं। नॉर्मल व्यूइंग का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल व्यूइंग का मतलब हुआ आप सीधे इसके ऊपर से देख रहे हो, मतलब सीधे ऊपर से देखोगे तो ये रे आपकी आंखों में पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। आपकी आंखों में पहुंचने के लिए ये दोनों रे पास पास होंगे तब पहुंचेगा, ये दोनों रे पास पास होंगे तब आपकी आंखों में पहुंचेगा। कब, जब यहां से निकलता हुआ कुछ यहां से कुछ निकलेगा, दैट मींस आई मस्ट बी वेरी स्मॉल। दोनों रे आपकी आंखों में पहुंचेंगे कब, एक रे तो सीधा गया, ठीक है, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, दूसरा अगर ऑलमोस्ट ऐसे जाएगा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपकी आंखों में पहुंचेगा। मतलब नॉर्मल व्यूइंग के लिए दोनों रे आपकी आंखों में पहुंचने के लिए इंसिडेंट एंगल को क्या होना है, इंसिडेंट एंगल हैज टू बी वेरी स्मॉल, है कि नहीं, पता चला कि इंसिडेंट एंगल हैज टू बी वेरी स्मॉल। सो फॉर नॉर्मल व्यूइंग इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना जरूरी है। ये चीज अगर समझ में आ गया तो क्या कहेंगे इसमें, फॉर नॉर्मल व्यूइंग I is small, I मतलब इंसिडेंट एंगल, सो R is also small, क्यों, क्योंकि μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r होता है, I छोटा हो गया तो R भी छोटा हो जाएगा। जब I और R आर स्मॉल तो हम कह सकते हैं, we can assume, so हम ये कह सकते हैं कि tan i is equal to tan i is equal to sin i, you know for small values of theta sin theta is equal to tan theta, theta 0 ले लो, sin 0 0 है, tan 0 0 है ना, तो for small values of angles tan i is equal to sin i, और कह सकते हैं tan r is equal to sin r। ये चीज हमें समझ में आ गया। Now what becomes this equation, इसको मैं मिटाता हूं, what becomes the equation, see here, ये इक्वेशन क्या बन गया, फिर अभी बन गया क्या, क्या मिल गया, यहां से देखो तो मिल गया डी ए इक्वल टू डी आर tan i बाई tan r, तो आप कहोगे डी ए इज इक्वल टू डी आर tan i बाई tan r को sin i बाई sin r लिख सकते हैं। sin i क्या था, थोड़ा फिगर में देखो तो sin i इज द एंगल हियर, i इज द इंसिडेंट एंगल इन मीडियम 2, मीडियम 2 में इंसिडेंट एंगल है i, है ना, मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिंग एंगल है r, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या रिलेशन मिलेगा, μ2 sin i इज इक्वल टू μ1 sin r, μ2 sin i इज इक्वल टू μ1 sin r, तो आप कहोगे बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ μ2 sin r इज इक्वल टू, सॉरी μ2 sin i इज इक्वल टू μ1 sin r, क्योंकि पहला मीडियम दूसरा मीडियम उसी हिसाब से, डोंट कंफ्यूज योर द फॉर्मूला,
बेसिक फॉर्मूला समझ में आ रहा है वाला, म्यू टू साइन आई इक्वल म्यू वन साइन आर कैसे होगा। तो क्या मिल गया साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू। 10 10 10 अपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ इनटू साइन आई बाय साइन आर मतलब म्यू वन बाय म्यू टू। ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला फॉर अपरेंट डेप्थ। और आपको अपरेंट डेप्थ निकालना है, यू हैव टू गो फॉर दिस फॉर्मूला dA इज इक्वल टू dr इनटू म्यू वन बाय म्यू टू। ठीक है, इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर दोनों मीडियम आपको दिया गया है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिया गया है, तो मिल गया dA इज इक्वल टू dr इनटू म्यू वन बाय म्यू टू। देख लो, यही तो था। अब ये म्यू टू क्या है, ये हो गया ऑब्जेक्ट मीडियम है ना। म्यू वन क्या है, ये हो गया ऑब्जर्वर मीडियम। चलो हम और म्यू वन म्यू टू याद नहीं रखेंगे, हम क्या याद रखेंगे, म्यू ऑब्जर्वर म्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे रखेंगे तो हमारा काम और आसान बन जाएगा। तो व्हाट विल से कंक्लूजन में क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा कंक्लूजन में, कंक्लूजन में मिलेगा अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू म्यू। क्या था इसमें वैल्यूज देखो तो, इट वाज म्यू वन बाय म्यू टू। म्यू वन क्या था, म्यू फॉर दी ऑब्जर्वर बाय म्यू फॉर दी ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या। अब अगर ऑब्जर्वर मीडियम डेंसर है, ऑब्जर्वर मीडियम डेंसर है मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या लगेगा, ये छोटा हो गया तो अपरेंट डेप्थ विल बी मोर देन द रियल डेप्थ, जो आप लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे। अगर ऑब्जर्वर मीडियम डेंसर है, ऑब्जर्वर मीडियम डेंसर है तो ऑब्जर्वर मीडियम डेंसर है तो क्या लग रहा था, अपरेंट डेप्थ इज मोर देन द रियल डेप्थ। और अगर ऑब्जर्वर मीडियम रेयर है तो क्या मिल रहा था, अपरेंट डेप्थ इज लेस, जो कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। अगर हम कहेंगे ऑब्जर्वर मीडियम रेयर है मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, dA इज लेस देन dr। समझ में आ रहा है। ये जो कंक्लूजन आया उसको हमें याद रखना है। क्या देखे हम कहेंगे कि व्हेन ऑब्जर्वर, अच्छा ये तो हम लोग लिख चुके हैं, क्यों दोबारा लिखेंगे। ऑब्जर्वर मीडियम अगर डेंसर है दैट मींस कोई ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम इज व्यूड फ्रॉम ए रेयर मीडियम, देन द अपरेंट डेप्थ ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम इज व्यूड फ्रॉम ए रेयर मीडियम, अपरेंट डेप्थ विल बी लेस। समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम पूछेंगे ये जो चीज है dA इक्वल टू dr टू म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू ऑब्जेक्ट, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज मिसिंग इन एनी बुक। हर एक बुक में वो चीज मिसिंग है, उसको थोड़ा पकड़ते हैं तो हमारे काम में लगेगा। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये म्यू वन है ये म्यू टू है, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, क्या वो दूसरा मीडियम को देख पाएगा, प्योरली ट्रांसपेरेंट मीडियम, एनी लाइट रे कमिंग इज पासिंग थ्रू, तो उसको नहीं लगेगा कि एक मीडियम खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है। अगर लग रहा है तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। अगर ये एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे आप अगर वो सेंट गोबिन का ग्लास दिखाता है ना, वो आदमी जाके टकरा जाता है, सामने ग्लास रखा है उसको दिख नहीं रहा है कि ग्लास रखा है, यू कैन नॉट सी ए ग्लास प्लेट इफ इट इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। एग्जैक्टली दैट वे अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऑब्जर्वर को नहीं लगेगा कि ये मीडियम यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे शुरू हुआ। लेकिन जब इस मीडियम में हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसको इसका अपरेंट ऑब्जेक्ट कहीं दिखता है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, ये दिखता है अपरेंट ऑब्जेक्ट, है ना। उसको क्या लगता है कि दो मीडियम में वो नहीं लगता है, वो यहां से देख रहा है, ये कौन है, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, अच्छा सॉरी ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है और क्या बोल रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट है, कहां है, यहां। कौन सा मीडियम, बोला मेरा मीडियम है, क्योंकि उसको दूसरा मीडियम दिखता नहीं है। ये जो चीज आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जर्वर कैन नॉट सी द अदर मीडियम, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी मदद करेगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट को थोड़ा मैं जो बताया अभी उसको लिखेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ, द ऑब्जर्वर always feels that the object is in his medium
मीडियम, अपना मीडियम में है। समझ में आ रहा है? कोई मछली अगर पानी के अंदर होते हुए चिड़िया को देख रहा है, मछली को नहीं लग रहा है कि चिड़िया हवा में उड़ रहा है, मछली को लग रहा है चिड़िया पानी में उड़ रहा है ना, और इतना हाइट में। डेप्थ इज अपीयरिंग टू बी डिफरेंट। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल देके लिखूंगा तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़ा लेट अस सी। तो मैं इसको ऐसे करता हूं। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए मीडियम, हियर इज a boundary between two different medium. Here is suppose water and here is air and here is a bird. ठीक है, ये बाढ़ ऐसा है, क्या हाइट पे है? ये बाढ़ है कुछ मान लो कि y हाइट पे। कहां से? पानी से। और यहाँ पे कोई है मछली, मछली चिड़िया को देख रहा है, चिड़िया मछली को देख रहा है। अब जानते हो दोनों में आपस में बहुत प्यार है। ये डिस्टेंस है x। चलो इसको मानते हैं μ1 और ये μ2 और म्यू एयर एंड म्यू वाटर ऐसे कर लेते हैं। लेट अस मेक इट म्यू एयर एंड म्यू वाटर। ये म्यू एयर है, ये म्यू वाटर है। आपको अगर पूछा जाएगा डिस्टेंस ऑफ बर्ड इज सीन बाय फिश इज इक्वल टू, मछली को पूछेंगे बताओ चिड़िया तुमसे कितना दूर पे है, उसको ये अपरेंट डेप्थ कुछ दूसरा दिखेगा, लेकिन ये तो दिखेगा x ही दिखेगा। क्या दिखेगा? इट इज x प्लस ये इसका अपरेंट डेप्थ, इसका रियल डेप्थ कितना है? y। अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है? रियल डेप्थ इनटू म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम। देख कौन रहा है? फिश। उसका ऑब्जर्वर मीडियम बन गया ऑब्जर्वर, उसका म्यू क्या है? म्यू w। म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम म्यू w बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम। ऑब्जेक्ट कौन है? चिड़िया। क्यों? देख रहा है मछली। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट मीडियम का म्यू कितना है? म्यू ए। तो चिड़िया को सॉरी मछली को लगेगा कि चिड़िया मेरे से इतना दूर पे है। द डिस्टेंस ऑफ बर्ड इज इन बाय फिश इज दिस मच इन वाटर। मछली को लग रहा है ये चिड़िया पानी में उड़ रहा है और मेरे से इतना दूर पे उड़ रहा है इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब हम लेंस वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर सिल्वर लेंस वाले करेंगे, लेंस को एक तरफ से सिल्वर कर दिया गया होगा या फिर कुछ ग्लास स्लैब को एक तरफ से सिल्वर कर दिया होगा, हाउ टू अप्रोच, देन विल सी दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस ऑफ बर्ड इज सीन बाय फिश इज x प्लस y इनटू म्यू w बाय म्यू a, क्योंकि फॉर्मूला है म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब चिड़िया मछली को चिड़िया का डिस्टेंस जितना लग रहा है, मछली को चिड़िया का डिस्टेंस जितना लग रहा है, चिड़िया को मछली का डिस्टेंस वही नहीं लगेगा। आपको अगर पूछा जाएगा डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड कितना होगा? चिड़िया को पूछते हैं मछली कितना नीचे है, बोले मछली हवा में तैर रही है। अच्छा, कितना नीचे? ये तो ऑलरेडी वही है, प्लस इसका अपरेंट डेप्थ, इसका अपरेंट डेप्थ क्या होगा? रियल डेप्थ इनटू म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम। ऑब्जर्वर कौन है? चिड़िया। क्या है उसका म्यू? म्यू ए बाय ऑब्जेक्ट मीडियम। ऑब्जेक्ट का मीडियम म्यू क्या है? म्यू डब्ल्यू। यस, इन एयर। See, obviously these two things are totally different from each other. समझ में आ रहा क्या? तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ द बर्ड, ये एग्जांपल में है, हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ द बर्ड इज सीन बाय फिश इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ फिश इज सीन बाय द बर्ड। अगर मछली को लग रहा है कि चिड़िया मेरे से 25 मीटर हाइट में है, तो चिड़िया को लग रहा है मछली मेरे से 15 मीटर दूर पे है। दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, तो ऑब्वियसली जब दोनों मूव करेंगे वेलोसिटी कैलकुलेशन विल बी अगेन डिफरेंट, है ना। अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, क्योंकि हमारा यूजुअली सेम मीडियम में जब हम होते हैं, अगर ए को पूछा जाएगा बी का डिस्प्लेसमेंट तुमसे कितना है, वो जितना बोलेगा। बी को पूछा जाएगा ए का डिस्प्लेसमेंट तुमसे कितना है, बोलेगा इक्वल एंड अपोजिट, है कि नहीं। अगर ए बोल रहा है बी मेरे से
10 मीटर नॉर्थ को है तो बी बोलेगा ए मेरे से 10 मीटर साउथ को है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड आर डिफरेंट। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, जिसको हम लोग बाद में अकाउंट कर लेंगे, अभी नहीं, अभी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आर यूजुअली इक्वल एंड अपोजिट इफ दे आर इन द सेम मीडियम, बट नाउ दे आर इन डिफरेंट मीडियम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मछली को लग रहा है कि चिड़िया पानी में उड़ रही है, चिड़िया को लग रहा है कि मछली हवा में तैर रही है, दोनों का मीडियम ही अलग अलग लग रहा है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग चीज यू कैन नोटिस हियर, अगर हम ये पहला वाला डिस्टेंस को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ बर्ड ए सीन बाय फिश, डिस्टेंस ऑफ बर्ड ए सीन बाय फिश को चलो ऐसे कुछ लिखते हैं DBF, बस नाम दे दिए डिस्टेंस ऑफ बर्ड ए सीन बाय फिश। तो इसको क्या नाम देंगे? डिस्टेंस ऑफ फिश ए सीन बाय बर्ड DFB। अगर हम कहेंगे DBF बाय DFB, थोड़ा सा यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलने वाला है DFB, तो क्या आएगा देखो, तो DBF हो गया डिस्टेंस ऑफ बर्ड ए सीन बाय फिश, DFB क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ फिश ए सीन बाय बर्ड। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया? दिस बाय दिस। चलो वैल्यूज लिखते हैं, इट इज x प्लस y इंटू म्यू w बाय म्यू a डिवाइडेड बाय y प्लस x इंटू म्यू a बाय म्यू w। थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करो, you will arrive at a very interesting result. What is coming out to be? It is x into mu a, y into mu w, y into mu w divided by, नीचे क्या आया? y by mu a, by mu a। इस चीज को करते हैं तो ये क्या हो जाएगा नीचे? y into mu w प्लस x इंटू म्यू ए, ऊपर गया म्यू डब्ल्यू। तो ऑब्वियसली ये दोनों क्वांटिटी तो गए, कमिंग आउट टू बी म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए। यू अराइव एट ए वेरी पेक्यूलियर एंड इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। किसी चिड़िया को लग रहा है कि मछली मेरे से 25 मीटर दूरी पे है पानी में, मछली को क्या लगेगा चिड़िया मेरे से कितना दूर पे है? आर यू गेटिंग? यू गेट द रेशियो म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए। क्या हुआ देखो, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड ए सीन बाय फिश, तो ये ऑब्जर्वर, फिश था ऑब्जर्वर वाला म्यू यहाँ पे आएगा, ऑब्जर्वर वाला म्यू यहाँ पे आएगा, जो ऑब्जर्वर है। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया? ये मैं फॉर्मूला को एक यूज करना चाहूंगा छोटा सा, फॉर्मूला को यूज करना चाहूंगा। जस्ट सी द क्वेश्चन इटसेल्फ बिकम्स ए डिफिकल्ट क्वेश्चन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। पहला है टू ए बर्ड it appears that the fish is at a distance say 20 meter from it with नॉर्मल व्यूइंग, मतलब ये हुआ कि फिश से वर्टिकली वो बढ़े। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश इन वाटर? क्या दिया है? फिश कितना डेप्थ में नहीं दिया है, बस ये दिया है म्यू डब्ल्यू इज 1 और 4/3 और म्यू ए तो आप जानते हो 1 है। ये डाटा आपके पास है, तो सीधे सीधे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ बर्ड ए सीन बाय फिश, डिस्टेंस ऑफ बर्ड ए सीन बाय फिश,
थोड़ा देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, आई डोंट मक अप द फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश, ऑब्जर्वर कौन हो गया, फिश, तो फिश का म्यू कितना है, फिश का म्यू है 4/3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड इज नथिंग बट म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर, देख रहा है कौन, बर्ड, सो इट इज म्यू ऑफ एयर। अगर ये मिल गया फिर और क्या रखा है, नाउ दिया क्या है, डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, पूछा डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो इसको इधर ले लो, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4/3 और dbf is equal to dfb whole into mu w by mu w is 4/3, तो क्या दिया है 20 मीटर, 20 into 4/3 is coming out to be something like 80/3 meters. So distance of the bird as seen by the fish is 80/3 meter, which is more than that from that seen by the bird, है ना। बर्ड को दिख रहा था कि मछली मेरे से 20 मीटर दूरी पे है, मछली को दिख रहा है कि ये बर्ड हमसे 80/3 मीटर दूरी पे है। क्या ये चीज समझ में आ रहा है, आ रहा है? dbf मतलब डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश, dfb मतलब डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड टू ए बर्ड इट अपीयर्स द फिश इज एट ए डिस्टेंस 20 मीटर, मतलब dfb का वैल्यू है 20 मीटर। क्लियर, तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, इतने सारे चीज डिस्कशन कर लिए, और रिफ्रैक्शन चैप्टर में ये जो अपर एंड डेप्थ वाला चीज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और भी सारी चीजें हैं लेकिन ये दोनों प्राइम इंपोर्टेंस के हैं, तो इन दोनों को थोड़ा ठीक से देख लेना। तो क्या देखे हम लोग, देखे ये कि when you are making normal viewing of an object in different medium, the upper and depth of the object is found to be different from the real depth, and that phenomenon is called longitudinal shift। और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता हुआ नजर आता है कि ऑब्जेक्ट से कोई दो रे निकल के लेके आओ, वो दोनों रे अगर आपकी आंखों में पहुंचेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, आपकी आंखों में पहुंचेंगे, फिर वो जो रे आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं उनको कन्वर्ज करवाओ, जहां पर कन्वर्ज होंगे वहां पर ऑब्जेक्ट है, आप ऐसे लगेगा आपको ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट लग रहा है कि यहाँ पर है, किसको, जिसकी आंखों में ये रे पहुंच रहे हैं, जिसकी आंखों में ये रे पहुंच रहे हैं उनके लिए लगेगा कि ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, जबकि ऑब्जेक्ट सचमुच में यहाँ पर है। So when we call about normal viewing, these angles I and R are very small, and we have seen that tan I can be taken as sin I. This is the important part of the derivation. Tan I is taken as sin I, tan R is taken as sin R. तो फिर sin I by sin R की जगह mu1 by mu2 लिख दिए, तो मिला अपर एंड डेप्थ इज रियल डेप्थ इनटू mu1 by mu2, जिसको हम लोग ढंग से लिखे तो क्या लिखे, अपर एंड डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू mu ऑफ द ऑब्जर्वर बाय mu ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को याद रखो तो ठीक रहेगा, नहीं तो कौन mu1 कौन mu2 गलत हो जाएगा। दूसरी चीज हम लोग देखे, इस तरह के एप्लीकेशन में देख लिए, द ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स दैट द ऑब्जेक्ट इज इन हिज मीडियम। चिड़िया सोचती है कि मछली हवा में तैर रही है, मछली सोचती है कि चिड़िया पानी में उड़ रही है ना। तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको ये काफी मदद करेगा, ठीक है। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट, ठीक है। ये सब भी हम लोग देख लिए, तो थोड़ा सा हम लोग अगर थोड़ा इसको सिस्टमेटिकली लिफ्ट करेंगे, लिखेंगे तो फैक्ट्स रिवील्ड, जो आपको चीजें मिल रहा है उसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो नोट्स बनेगा आपका। फैक्ट्स क्या मिला कि the upper end depth is equal to real depth into mu of the observer by mu of the object। हाँ सर ये ठीक, mu of the observer medium by mu of the object medium। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम है अपर एंड डेप्थ विल बी लेस, पहला चीज ये हुआ। दूसरा हुआ, इससे क्या मिला, when object is in denser medium, object is in denser medium, when object is in
डेंसर मीडियम, क्योंकि ये सब बार बार आता है। द डेंसर मीडियम आपको हो गए, डेंसर मीडियम मतलब ऑब्जेक्ट का मीडियम, ऑब्जर्वर का मीडियम में से ऑब्जेक्ट का मीडियम डेंसर है, मतलब म्यू ऑब्जेक्ट ज्यादा है। तो आपको हो गए DA इज लेस देन DR एंड वाइस वर्सा, ये आपको मालूम है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ ऑब्जर्वर feels that the object is in his medium. Fourth हुआ what is the longitudinal shift? Longitudinal, I'm talking about longitudinal shift कितना हुआ। तो ऑब्जेक्ट कहां पर था, एट ए डिस्टेंस dr, अब कहां दिख रहा है, एट ए डिस्टेंस d, है ना। तो कितना नजदीक आ गया, यू सी इट इज dr माइनस da, शिफ्ट कितना हो गया, dr माइनस da इज द लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट। और ये dr माइनस da का मतलब क्या हुआ, अगर dr ज्यादा होगा da कम होगा तो dr माइनस da इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अगर क्वांटिटी नेगेटिव आ गया तो कहेंगे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑलवेज विल टेक इट लाइक दिस। द लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट इज dr माइनस da, दैट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे मीडियम में देखता है तो उसको लगता है कि ऑब्जेक्ट मेरे तरफ शिफ्ट कर गया। कितना शिफ्ट कर गया, dr माइनस d। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स में और दूसरे एग्जाम्स में। तो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब हुआ thus when an observer in one medium looks at an object in other medium, the object appears to shift towards the observer by dr माइनस d। आप कहोगे सर हरदम कहाँ ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, कभी कभी लगता है कि वो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, हाँ ऑटोमेटिकली चीज नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मींस गोइंग अवे, dr माइनस da। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये dr माइनस da का वैल्यू लिख लेते हैं। क्या हो गया, dr तो dr है और da क्या, da इज नथिंग बट dr into mu of the observer medium by mu of the object medium. So it is coming out to be dr whole into 1 minus mu of the observer medium by mu of the object medium. तो it shifts towards, सपोज यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई चीज को देख रहा है हवा में, दोनों बोथ ऑफ देम आर इन एयर, उसको लगेगा कि इसका कुछ डिस्टेंस है, से दैट इज dr। अब अगर सडनली कोई एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट को आप इसके अंदर दी रे से डाल दी, वो तो ग्लास को नहीं देख सकता, लेकिन जैसे ग्लास अंदर आ गया रेज विल अंडरगो रिफ्रैक्शन, आपको लगेगा कि इसको लगेगा क्या, ये पास आ गया। उसको समझ में नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट पास दूर क्यों हो रहा है। अगर आप बार बार ये ग्लास मीडियम को, स्लैब को इसके अंदर डाल रहे हो, निकाल रहे हो, ये बोले क्या मैजिक हो रहा है, ये टेबल मेरे पास आ रहा है, दूर जा रहा है, पास आ रहा है, दूर जा रहा है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सी द मीडियम। समझ में आ रहा है, उसको लगेगा ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है, दूर जा रहा है, पास आ रहा है, दूर जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि बीच में हम मीडियम को बदल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तभी जाके आप मीडियम, नहीं तो मीडियम नहीं दिख जाएगा तो पता चल जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब आप इसको अंदर डालोगे, लगेगा कि शिफ्ट करके इधर आ गया,
निकाल लोगे लगेगा कि दूर भाग गया। ठीक है, ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गया। तो कितना शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, जितना थिकनेस है, देखो ये एयर में ये थिकनेस है टी सपोज, तो आप देखो कि इस थिकनेस के चलते ही कुछ लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट होगा, बाकी तो एयर है। तो यहां पर इस थिकनेस को ले लेंगे dr की जगह, t इंटू 1 माइनस म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे, इस चीज को थोड़ा हम लोग बढ़िया से लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट नंबर था शिफ्ट का, लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट। अच्छा, नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे, if both object and observer are in same medium mu1 and a transparent medium of thickness T and refractive index mu2 is inserted between them, then the object shifts towards, object appears to shift, object appears to shift towards observer, कितना, बाय शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस कितना दिया है t इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम बाय म्यू ऑफ द स्लैब म्यू2 बाय म्यू1 बाय म्यू2। ये इतना शिफ्ट करता हुआ नजर आएगा। Are you getting? And shifts are added. ये अगर नेगेटिव आएगा means it is going away, पॉजिटिव आएगा it is going close towards it। ठीक है, ये बात है। ठीक है, और अगर बहुत सारे ग्लास स्लैब डाल दिए, सपोज ये है ऑब्जर्वर और ये है ऑब्जेक्ट, आप इसके अंदर ये डाल दिए, ये डाल दिए, तो सबके लिए कुछ कुछ शिफ्ट होगा। दे आर ऑल अलजेब्रिकली एडेड। मान लो इसका थिकनेस T1 है, ये इसका है म्यू2, ये है म्यू3 और इसका थिकनेस है T3, इसका T2 है, ऐसे करके दिया है। तो अब शिफ्ट कितना हो जाएगा, T2 इंटू म्यू1, इसका मीडियम है म्यू1, T2 इंटू म्यू1 माइनस म्यू1 बाई म्यू2, इसके लिए T3 इंटू 1 माइनस म्यू1 बाई म्यू3, गो ऑन एडिंग देम, ऑल शिफ्ट को एड कर दो अलजेब्रिकली, यू विल गेट द टोटल शिफ्ट। समझ में आ रहा है क्या? ये चीज जानना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसके क्लू में आप ऐसे याद रख सकते हो कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है जो कि है मीडियम म्यू1 में, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको देख रहा है म्यू, वो भी म्यू1 में। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक स्लैब रख दिया गया, ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम रख दिया गया, सपोज दिया है इसका म्यू2 है, थिकनेस है T2, इसका म्यू3 है, थिकनेस है T3। ठीक है ना? तो इस केस में शिफ्ट क्या हो जाएगा, शिफ्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी T1, ये थिकनेस T2 है, T2 इंटू 1 माइनस म्यू1 बाई म्यू2 प्लस T3 इंटू 1 माइनस म्यू1 बाई म्यू3। सबका शिफ्ट को जोड़ दो, इनमें से कुछ कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं, कुछ कुछ नेगेटिव आ सकते हैं। हो सकता है कि ये आदमी और ये ऑब्जेक्ट दोनों पानी के अंदर है, आप एक ग्लास स्लैब डाल दिए, म्यू2 ज्यादा हो गया पानी से, ग्लास के लिए म्यू होता है 1.5, पानी का 1.33 होता है।
और हो सकता है कि आप एक होलो बॉक्स को उसके अंदर डाल दिए, होलो ग्लास बॉक्स, मतलब अंदर एयर है तो म्यू कम हो गया, तो इसके चलते दूर भाग जाएगा, इसके चलते पास आ जाएगा। आर यू गेटिंग? हाँ, तो अकॉर्डिंगली ये कोई चीज पॉजिटिव आएगा, उसमें से कोई चीज नेगेटिव आएगा। मैं इसको छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू से करना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। ये कोई एक आदमी है और हियर इज एन ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इज से एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग लाइक से 4 मीटर, ठीक है, और द एंटायर थिंग इज इन वाटर, द आर्मी एंड द ऑब्जेक्ट बोथ आर इन वाटर। ये मान लो कि कोई एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस है 1 मीटर, थिकनेस ले लेते हैं 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और ये दूसरा है जिसका थिकनेस कितना है, सपोज जस्ट फॉर कैलकुलेशन थिकनेस हम कहेंगे 0.8 मीटर, क्योंकि आप 1 ले लेते हैं तो चीजें छुप जाते हैं, पता नहीं चलता। 0.8 मीटर, तो क्या है, ये ए है, नाम इसका ए है, ये बी है, ठीक है। तो आपको इस सिस्टम को थोड़ा ध्यान से देखना है। इस सिस्टम में मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, ठीक है, इन फिगर शो the object and observer are inside water, जिसका म्यू कितना है 4/3। A is a glass slab, A is a glass slab, कितना है म्यू, म्यू इज 1.5, अच्छा ठीक है। B is a hollow glass, a thin hollow glass box, is a thin wall hollow ग्लास बॉक्स, होलो ग्लास बॉक्स। इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, जगह ज्यादा खा गया। थीन होलो ग्लास बॉक्स, थीन होलो ग्लास बॉक्स, थीन वॉल होलो ग्लास बॉक्स, मतलब ये ग्लास है और ये एयर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, चीज क्या है, वाटर है, ये वाटर है। पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा ऑब्जेक्ट मेरे से कितना दूर पे है। समझ में आ गया क्या? तो अब हम इसको निकालना चाहते हैं। निकालने की दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, अभी पहले तो ये देखते हैं, जब मल्टीपल स्लैश देखेंगे तब उसको देख लेंगे। व्हाट इज apparent distance, apparent distance of object as seen by observer, ये है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये हमारा ऑब्जर्वर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर आपको दिख रहे हैं। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा ऑब्जेक्ट मेरे से कितने दूर पे, एक्चुअली कितने दूर पे, 4 मीटर दूरी पे, बीच में 2 मीडियम हम डाल दिए। अब इसका कैलकुलेशन हमें करना है, तो हमें पहले निकालना होगा व्हाट इज द शिफ्ट। ये म्यू फॉर ग्लास दिया हुआ है, म्यू फॉर ग्लास दिया हुआ है 0.1.5 म्यू जी। चलिए कैसे करें, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करेंगे, शिफ्ट टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। हमारा जो शिफ्ट का फॉर्मूला है क्या है, इट वाज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। शिफ्ट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर कितना है भाई, ये है
ये फॉर्मूला है, देखो तो यहाँ पे थिकनेस दोनों का दिया हुआ है, ये 1.5 मीटर, ये 0.8 मीटर। 1.5 मीटर के लिए क्या होगा, यू विल से इट इज 1.5 मीटर इनटू म्यू फॉर द ऑब्जर्वर, मतलब म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्लास स्लैब का म्यू क्या है, वो पहला वाला ग्लास था, वो भी म्यू फॉर द ग्लास, प्लस जो हॉलो थिन वॉल्ड बॉक्स था उसके लिए 0.8 मीटर म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर बाय क्या है उसके अंदर, एयर, म्यू ए। ये हो गया शिफ्ट। चलिए वैल्यू निकालते। लिखने में कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, हाँ 1 माइनस समथिंग लिखने के लिए भूल गए, 1 माइनस समथिंग लिखने के लिए भूल गए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस समथिंग। ये थोड़ा इसको बदलते हैं, फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ कर दिए। अच्छा ये हो गया 1.5 इंटू 1 माइनस दिस प्लस 0.8 इंटू 1 माइनस दिस। यस, चलिए वैल्यू डालते हैं। 1.5, ये 1 माइनस म्यू डब्ल्यू का वैल्यू है 4/3, म्यू ग्लास का वैल्यू है 3/2, 1.5 है ना, तो ये हो गया ऐसे, प्लस म्यू डब्ल्यू 4/3, म्यू ग्लास 3/2, 1.5 है 3/2। अच्छा ये 0.8 इंटू 1 माइनस म्यू डब्ल्यू इज 4/3, म्यू एयर इज 1। सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ रहा है, 9 माइनस 8 इज 1, इट इज 1.5/9 प्लस 0.8 इंटू ये -1/3 इंटू -1/3, देखो क्या हो रहा है, ये आ रहा है 1.5 मीन्स 3/18, राइट, 3/18 माइनस ये 8/30। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/18 इज 1/6 माइनस 4/15 कितना हो गया, देखो तो इट इज 15 माइनस 4 इज 11/90, 15 माइनस 24 नेगेटिव आ गया, राइट, 4/15, तो कितना आ गया ये माइनस ऑफ 15, here it is coming 15 and here it is coming 24, 9/90 नहीं 1/10 है ना, so it is coming out to be minus 1/10 meter. So shift towards the observer is minus 1/10 meter or minus 0.1 minus 0.1 meter. To the observer it appears that the object shifts towards him by minus 0.1 meter, मतलब क्या है, it moves away from him. तो what is the apparent distance, already distance क्या था 4 मीटर, इसको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मेरे तरफ माइनस 0.1 मीटर आया, मतलब लग रहा है कि मेरे से दूर 0.1 मीटर गया, तो उसको क्या लगेगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 4 प्लस 0.1, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर विल बी 4 प्लस 0.1। अगर पॉजिटिव आंसर आता तो माइनस कर देते, है ना, तो क्या कहेंगे इसमें, thus to the observer it appears, नेगेटिव साइन है ना, it appears that the object shifts away from him by 0.1 meter. The apparent distance of object as seen by observer is equal to real distance plus shift, नहीं, और प्लस माइनस शिफ्ट जो है देखना है, रियल डिस्टेंस कितना था, रियल डिस्टेंस था 4 मीटर, दूर भाग गया 0.1 मीटर, तो हो गया 4.1 मीटर, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये 4.1 मीटर है, नहीं,
ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट मेरे से 4.1 मीटर दूरी पे है। अगर ये एयर वाला बॉक्स को निकाल देंगे, क्योंकि यही नेगेटिव शिफ्ट करवा रहा है, देखो यही नेगेटिव शिफ्ट करवा रहा है, अगर एयर वाला बॉक्स को निकाल देंगे तो लगेगा कि पास आ गया, है ना। एयर वाला बॉक्स को निकाल देंगे, लगेगा पास आ गया। तो उसको ऊपर नीचे करोगे दूर में, आपको लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, जा रहा है ना। तो थिंग्स गो लाइक दिस। क्या ये न्यूमेरिकल में ठीक से आपको समझा पाया? इज इट अंडरस्टूड? थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, फिर से पूरा क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा। क्वेश्चन था इसमें, हाँ, शिफ्ट का फॉर्मूला पहले देख लो। शिफ्ट, यहाँ पर जो शिफ्ट लिख रहा हूं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूं, शिफ्ट टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, शिफ्ट टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को लगता है कि ये शिफ्ट हो गया, कितना, T2 into 1 minus mu1 में mu2 plus T3 into 1 minus mu1 में mu3, लाइक दैट। ठीक है, mu3 क्या है, जो मीडियम को डालें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जेक्ट जो यहां से 4 मीटर दूरी पे है, पानी में है, और यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस है 1.5 मीटर। यहाँ पर एक थिन वर्ल्ड बॉक्स है, थिन वर्ल्ड बॉक्स है, तो क्या होगा, इसमें थिकनेस दिया है 0.8 मीटर। तो ये दोनों का थिकनेस मालूम है, दोनों का म्यू मालूम है, और पूछा गया कि व्हाट इज द शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो फॉर्मूला लगा दिए, लगाने के बाद चीजें आया नेगेटिव। सो द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर by minus 0.1 meter, means it shifts away from the observer by 0.1 meter। तो फिर हम क्या कहेंगे, the apparent distance of the object as seen by the observer is था already 4, उसको लग रहा है कि और थोड़ा दूर चला गया, तो हो गया 4.1 मीटर। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है चीजें? यस। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब्स। अगर बहुत सारा स्लैब एक के ऊपर एक रखा हुआ है, कैसे निकालेंगे लेटरल शिफ्ट, कैसे निकालेंगे लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट, कैसे निकालेंगे व्हाट इज द इक्विवेलेंट म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, आज का समय तो यहाँ पर हो गया है। लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।